works, especially those considered of superior or lasting artistic merit. Literature, in the general parlance, consists of the written works. But as far as classical Indian literature is considered, some part of classical Indian literature uh, is having a major part particularly, which is not in written form. That is called the Shruti literature. And you see that in the context of India, where there is an unbroken living oral tradition with a history of more than at least 5,000 years, some people say, or at least if we just assume that Vedic literature started from 1500 BC and up to 500, those 1500 years particularly devoted to the Vedic literature. The meaning of literature for our present purpose in that context has to be extended to mean composition. So that would be a better word, I think, instead of literature to the composition, because composition is something which is coming from the something listened or something compiled, and that is converted into the composition rather than in the written form. And third important thing is that it includes the works composed and transmitted orally from generation to generation. So that's why in Sanskrit system of knowledge, uh, normally a term is often very popularly used, that is called Shruti. The three terms are there: Smriti and Vedas. So these three actually reflect the same idea, but content is different, entirely different. The Vedas that comes from anything which is for something which is related to the learned or learning that you have learned by some efforts. That is the Vedas. Ved means something which is learned, and Shruti the method through which we have learned it, we have compiled it. Yeah, so that's a Shruti, particularly the something which is heard by someone else and it is transferred and transmitted from generation to generation by way of listening and just restoring, listening, restoring, and reminding. That is the three basic tasks or functions of education: the creation, the preservation, and the transmission. So Shruti is a kind of literature that is transferred from one generation to another generation, and it was kept safe in the minds and hearts of the people who uh, compiled it, who listened to it. And Smriti is something based on Smriti, as the very term says, that Smriti is something memories. So it doesn't contain the memories of history, memories of anthropology, and not so on. But Smriti here is something, these are the books which were based on the idea of social structure, idea of religious structure, idea of political structure, and how to manage those structures and what rules and regulation may be there. So Smriti is something different from Shruti literature. And the very taste of both the uh, compilation of literature is different. Shruti gives more emphasis to the religious bent of mind, or something related to the rules and regulation regarding the divine matters. And Smriti is something in relation to the social, economic, or cultural aspects. So coming to the next slide. Content, Sanskrit knowledge system and beyond. We already discussed this in day before yesterday lecture, that Sanskrit knowledge system is not confined only to the religious literature, what we call the social literature, what we are studying, or the philosophical literature in the form of Vedas or Upanishads, or some religious texts like Ramayana and Mahabharata. In next slides or in forthcoming slides, we will see that Ramayana and Mahabharata even are not put in the category of religious literature. They are the part of the Laukik Sahitya, that is what you call the public literature, meant or secular literature. If you just translate the term Laukik, in English it is called the secular, which is not concerned with any religion. So, in the literary context, terminology is very important. So, in that way, Sanskrit knowledge system consists of mathematics, philosophy, grammar, music, politics, medicine, architecture, metallurgy, drama, poetry, storytelling, and many more. So this is called the Sanskrit knowledge system. Here, in today's discussion, we are just confining ourselves towards the cultural or socio-economic or some religious kind of literature. We will not include in our today's discussion the music, the politics, the medicine, the architecture, or science, or metallurgy, and so on, or mathematics like that. We will confine to be delimited to that kind.
So uh, we have already discussed. This is the classification framework of ITS that has been given actually by the NPS guidelines, NPS 2020, but it is not confined to only, it is not like a watertight compartment. We can also extend something, we can also add something. They are just providing us the guidelines or the outline, but uh, basically IKS includes and the knowledge system includes. So one is the literary aspect and there is a non-literary aspect. In non-literary, we see that the oral traditions are also there because Indian knowledge system is not confined only to the written work or only to the Shruti or Smriti literature. Rather, some oral traditions are also there which could not be compiled due to the lack of some script, due to the lack of alphabet, due to the lack, like if you just go to the northeast eastern part of India or to the remote areas of South India and tribal areas, they have their traditions right from the beginning, from ancient days, and sustainability ideas are there, but they could not compile those ideas in the form of some script, in the form of some written form, or documentation could not be done due to the lack of script sometimes. So many tribal areas in India and also in the world also, all over the world you will see. So oral traditions are there, and also some traditions which are not compiled or cannot be compiled in the form of alphabet. Please keep your mic off. They consist of art forms like performing arts are there, like visual arts are there in the form of pictures. You also see that in the caves of Ajanta and Ellora, we find a certain artistic forms, the sketches, the paintings, and also we find some sculptures, some monuments, and those are also reflecting some ideas of traditions, and ideas of knowledge or skills which were available in ancient time. So just at the site of some historical site, you can imagine that what was the level of, or what could have been the level of knowledge, the level of skills during that time. So in that way, oral traditions are also there. They include all kinds of all form like health. If you just see that Ayurveda is one of the ancient texts, but from Ayurveda, they also find in Mr. Manol Islam, please keep your mic. Please mute your mic, Mr. Manol Islam. Please mute your mic. Mic off. म्यूट कर ली म्यूट कर ली Please keep the mic off. Mr. Khan, please keep your mic off. Yes, thank you. So, oral traditions like health. So, apart from some of the written literature like Ayurveda or Charak Samhita, Sushruta, these were the stalwart figures in ancient India. But apart from these, we find that in our rural traditions, in our ancient traditions, there were some um, there were some you can say that the methods of healing something or curing something which is not available in books, rather they are called as often in our uh, household things. We also household day-to-day atmosphere. We use certain kind of like हम कहते हैं ना दादी और नानी के नुस्खे, such kind of things are there. The food and life practices of folklore, they all consist of the oral traditions. So then in literary traditions, we include one is the Sanatan Dharma. Sanatan Dharma is basically the term recently, it is becoming very popular. However, Sanatan refers to ancient, most ancient, which has no beginning, exactly no beginning, or actually it's very difficult to find the starting point. So that's called the Sanatan.
And dharma, it has different implications. So dharma is not equivalent to the religion in Indian philosophical tradition. So we have already discussed all these things regarding that. The problem of terminology is there. So Sanatana Dharma means the ancient Indian traditions or the traditions of ancient Indian culture, which is still continuing. So that includes core 14 Vidyas, Sthanas, works of several religious leaders and philosophers. 14 is basically, this is one category, but even more than 14 Vidyas, Sthanas are there, or the categories of knowledge are there. And works of several religious leaders and philosophers, they include from the Vedas to the Shankaracharya and beyond, even beyond it. And also include some Bhakti saints of South India or North India, also including the Kabir and Ramanujacharya, and even in Shankar Dev in Assam, and so on. And at regional level, you see that in the vernaculars and regional languages, a lot of literature is there in Bengali language, in Odia language, or in Tamil. Sangam literature, a huge stockpile of literature during the Sangam age, 7th and 6th century. And South India, most important is the Thiruvalluvar, Thirukural, or the Mani Megalai. These are the terms of during the age of Raja Krishna Dev Rai, Baimani, and Vijayanagara Samraj. A lot of like Sayan, who talks about the ancient Indian literature. He compiled it, and due to the efforts of Vidyaran and Sayan, these were the two brothers who are known as the compiler of the Vedic literature in South India, Vidyaran and Sayan. Due to their efforts, we could be able to find some glimpses about the Charvak's philosophy. Otherwise, Charvak, the original text is not available in Indian context. So, due to the efforts of some South Indian writers and philosophers of ancient time, we could be able. So, these people were existing after, I think, 7th and 8th century. So, in regional level or in regional languages, a lot of literature is also there. That is not there. So, just this is the task further, that how to come forward with that literature. And other dharmic traditions, like apart from the Vedic traditions, that Buddhist and Jainas are there, and some other, the division of Buddhism in Hinayan and Mahayan, and further Jainism in Digambar and Shwetambar, and further Buddhism created a lot of literature in the form of the philosophical schools of Shunyavad, of Nagarjuna, and so on. So this is the outline, and other apart from social and religious literature, there is a big area where basic and applied sciences or engineering or technology or architecture, alchemy, aesthetics, kavyas, arts, health, wellness, psychology, public administration, code of living, and so on. A lot of literature is available in Sanskrit, as well as in Pali, as well as in Prakrit, and later on in the regional vernaculars. So this is the outline. Now, if we just have a glimpse of the time scale, Rig Vedic period, it begins. This is just an idea that 1500 BC to 1000 is the most closer idea given by the Max Muller. He is one of the historians, uh, archaeologist also. So, उसका जो idea है, I would be bilingual uh, after this introduction. Then later Vedic period, it started just after 1500. These are not actually the water type compartments like things that's exactly at 1000 Vedic period ends and later Vedic period. This is not so. This is not the kind of thing. Rather, all things are overlapping. But one thing is ending, one thing is starting, or at the same time another thing is starting, one is also existing. So in that way. Beyond Vedic 600 to 300, this is just so that we may have an idea that what was the reaction of what. For example, Buddhism was the reaction against Vedic period. So this reaction was not again Rig Veda or Rig Vedic period. This reaction was when Rig Vedic period was converted into later Vedic period, and when the Karma Kanda or the ritualistic practices dominant, uh, were very dominant in the later society, and that people were not satisfied with those things. So that's why Buddhism emerged as a reaction against that. So that's why it is called the 6th century first Renaissance, when Mahatma Buddha and Mahavir Jain, they raised their voice against the overemphasis on rituals, overemphasis of karma, and people were suffering sometimes instead of
getting the solace of mind or peace of calmness of mind. They were trapped into the, you can say, uh, in such kind of religious or what you call the social or cultural, the ritualistic practices or structure of the society. So that's why Buddhism talks about the middle path, where you don't have to be ascetic or you don't have to be too much household. In between, you can achieve God in that way. So more, and also Jainism talks about the relativism of knowledge in the form of Syadvad, one of the ideas given by Jainism. Uh, and then Maurya's 300 BC to AD. So how the knowledge traditions are changing from BC before Christ or Christian to the Christian era, and during that time Mauryas also we found that Greek elements also entered in Indian culture and history. Those who are from history or sociology, they would also understand it better. But we all have this idea right from our school days during 11th class or 12th class. We also have studied that Sikandar invaded, Darius invaded, and Hellenic culture influenced the Indian culture at that time. So that happened during the Mauryans period. और वहाँ पर हमें एक नाम मिलता है that's very popular. It's called Kautilya or Chanakya. It's called Vishnupur. So three names as one person. ये वही टाइम है जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शासक बनते हैं और उसके बाद सिकंदर से तो नहीं लेकिन उनका जो सेनापति है सेल्यूकस उसके साथ उनकी लड़ाई होती है और यहीं से इमर्जेंस होता है चंद्रगुप्त मौर्य का एंड द इमर्जेंस ऑफ चाणक्य एज ए ग्रेट टीचर एज वेल एज ए ग्रेट सोशल आप क्या कहेंगे उसको कि सोशल रिफॉर्मर भी आप कह सकते हैं तो उनकी जो एक किताब है अर्थशास्त्र दैट इज द फर्स्ट बुक विच टॉक्स अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम जरूर अर्थशास्त्र है लेकिन ये पहली किताब है जो मुझे लगता है शायद वर्ल्ड की पहली किताब हो सकती है पर 300 BC की बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त तो यूरोप अभी अंधेरों में खोया हुआ था अभी यूरोप में तो उजाला भी नहीं हुआ था किसी ने एक चिराग भी नहीं जलाया या एनाक्सिमेंडर और थेल्स जो है वो यही बातें कर रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड का ओराइजन पानी से हुआ है कोई कहता था कि आग से हुआ है वो अभी उसी बीच में थे कि पानी है कि आग है और हम उस वक्त तक ये पूरा कंपाइल करके मॉडर्न पीरियड तक आ चुके थे कि पंच महाभूत हैं पंच महाकोश हैं और उपनिषद वेद ये सब कंपाइलेशन करे हुए भी हमको 1500 से ज्यादा मतलब 15 सदियां हो चुकी थी जिस वक्त यूरोप में अभी एनेक्सिमेंडर और थेल्स और एरिस्टोटल प्लेटो तो उसके बहुत बाद में 3rd century BC की बात है 3rd century BC में हमारे मॉडर्न पेज चल रही तो उस वक्त ये कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र की रचना की और उसी समय में एक किताब लिखी गई थी अभी आजकल बहुत एक कंट्रोवर्शियल डिबेट चल रही है कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ एक डिबेट चल रही है कि इंडिया वर्सेस भारत तो नो डाउट भारतवर्ष आर्यवर्त ब्रह्म ऋषि देश आर्य देश ये सारे टर्म मिलते हैं आर्यन लिटरेचर में मिलते हैं वैदिक लिटरेचर में मिलते हैं लेकिन इस वक्त की एक बड़ी कंटेम्प्रेरी एक बुक है कौटिल्यास का एक कंटेम्प्रेरी एक बुक है मैं एक्चुअली अभी अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंधेरे में बोल रहा हूँ एंड नोबडी इज लिसनिंग टू मी तो मैं अपना कैमरा खोल लेता हूँ ओके now it's okay again I'm sharing my screen We are listening, sir. yes sir you are listening मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ No, 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 sir. ठीक है थोड़ा सा ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन भी होते रहना चाहिए तो बात कर रहे थे हम लोग मौर्यन पीरियड में बीच बीच में इस तरह की चीजें आएंगी कि बट लिखा हुआ कुछ है लेकिन डिस्कशन में आप लोग रहिए तो अच्छा लगेगा उसमें स्लाइड पर ही मत जाइए सिर्फ डिस्कशन को कनेक्ट कीजिए अपने साथ तो मौर्यन पीरियड में जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा तो ये पहली किताब है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत से लोग समझते हैं जो हिस्ट्री जिन्होंने नहीं पढ़ी है या ज्यादा डीपर आइडिया नहीं है खास करके स्कूल लेवल पे कि अर्थशास्त्र को हम इकोनॉमिक्स समझने लगते हैं लेकिन जब थोड़ा बड़े होते हैं समझ में आता है तो जब इसका कंटेंट देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है
जिसमें सबसे पहले कौटिल्य या चाणक्य बात करते हैं कि शासन व्यवस्था के रूल क्या होना चाहिए, इथिक्स क्या होना चाहिए, मोरालिटी क्या होना चाहिए, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन है। और सबसे पहले वो एक विदेश नीति के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें एक खजाने के रूप में हमको देते हैं कि एक राजा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होना चाहिए। तो राजा के लिए बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मित्र, यानी उसके पड़ोसी जो देश है, उनके साथ मित्रता करना। इसी तरह से अमात्य है, यानी उनको मशवरा देने वाला, उनको राय देने वाला, उनको ओपिनियन देने वाला। और एंशियंट इंडियन कल्चर है कि हर राजा के साथ एक पुरोहित होता था। पुरोहित इसलिए होता था कि पुरोहित का काम या उसको धर्म गुरु भी आप कह सकते हैं, राजगुरु अक्सर वर्ड पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा आपने कि एक राजगुरु भी होते हैं। तो इन लोगों का काम होता था। और अगर रामायण और महाभारत का ट्रेडिशन अगर आप देखें, उसमें मिथिक्स में भी दिखाया गया है कि जो बड़े बड़े राजगुरु होते थे, तो उन्हीं ऋषियों में से कोई राजा को जब सलाह देते थे तो वो राजगुरु कहलाते थे, चाहे वो वशिष्ठ हो या वो ये अंगिरस हो। तो इस तरह के बहुत सारे, अंगिरस जो थे वो श्री कृष्ण के गुरु थे, अंगिरस। तो इसी तरह से ये ट्रेडिशन हमको मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। तो ये कौटिल्य के समय तक ये एक नियम बन चुका था कि हर राजा को जो है वो सलाह देने के लिए एक राजगुरु भी होगा, एक अमात्य होगा। अमात्य जो होगा वो एक मिलिट्री काइंड ऑफ चीज, या कहिए कि इकोनॉमिक इश्यूज पर उनको मशवरा देगा। और जो राज पुरोहित या राजगुरु होते थे वो उसका धार्मिक एस्पेक्ट बताते थे, रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है। तो अब यहाँ पर धार्मिक का मतलब रिलीजियस रिचुअल्स नहीं था। यहाँ पर कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस, राजा का कर्तव्य क्या। तो ये पहली किताब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। मैंने आपको एक छोटा सा गेम्स दिया है, अगर समय मिले तो कभी कौटिल्य को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अच्छी किताब है। मैं बता रहा था कि इंडिया और भारत अभी आजकल बहुत पॉपुलर है। इसी समय में एक किताब लिखी गई क्योंकि सेल्यूकस आया और उसके साथ लड़ाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, और अंत में युद्ध विराम हुआ। न कोई जीता न कोई हारा, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य जीते, लेकिन बड़े राजा थे, बड़ा दिल था। तो उन्होंने उस तरह से नहीं किया जैसे होता था कि जो एंशियंट ग्रीक कल्चर था उसमें, या अरब कल्चर था उस जमाने में। उस वक्त तक तो देखिए इस्लाम नहीं आया था, ये हम बीसी की बात कर रहे हैं। इस्लाम तो अभी 570 का एडी की बात है। तो उस वक्त तो अरब में जो नेटिव कल्चर था, और अरब के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात इस्लाम से भी बहुत पहले थे, द ओराइजिन ऑफ इस्लाम उससे बहुत पहले थे। अरेबियंस यहाँ पर आते थे, ट्रेडर्स के रूप में भी आते थे। उनका कल्चर, म्यूजिक, आज भी आप बहुत सारे उसका इम्पैक्ट इंडियन फिल्मों में भी आप देखते हैं। तो गाना मैं आपको याद दिलाऊं, एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र और माला सिन्हा की, आंखें। उसमें एक गाना था, गैरों पे करम अपनों पे सितम। तो उस गाने को जब आप सुनेंगे, यूट्यूब पर सुनिएगा, उसकी जो स्टार्टिंग म्यूजिक है वो अरेबियन म्यूजिक है, वो अरब का म्यूजिक है, और वो इस्लाम से बहुत पहले का है। इसी तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे इंडियन कल्चर में, म्यूजिक में आप देखें तो बहुत बड़ा सा एक जैसे थाल है, वो बजा रहे हैं, उसको दफ कहते हैं या ढपली, उसी का छोटा रूप है। ये अरब का इंस्ट्रूमेंट है। तो अरेबियंस के साथ हमारे ताल्लुकात उसी जमाने के, ग्रीक अरब उनके बाद में। रिलीजन तो बहुत बाद में आया। तो सेल्यूकस के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए। उनकी एक बेटी थी हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य जस्ट मैरिड दैट गर्ल, और पहले इंटरनेशनल ये विवाह हुआ, अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ भारत के साथ। और ग्रीक्स के साथ जो संबंध हुए उसमें उनका एक राजदूत यहाँ पर आया जिसका नाम था मैगस्थनीस। और मैगस्थनीस जब यहाँ पर आया तो उसने एक किताब लिखी, वो पैरल किताब थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, और उसका नाम था इंडिका। तो उस किताब का नाम इंडिका है, तो इससे एक तो एविडेंस ये मिल जाता है कि इंडिया नाम जो है वो अंग्रेजों ने न देकर के वो ग्रीक्स में दिया था, क्योंकि वो ग्रीक राइटर था। तो एक एविडेंस तो ये है कि वो, और दूसरा ये है कि ग्रीक लोग सिंध को इंडस कहा करते थे, इंडस नदी कहा करते थे सिंधु नदी को, जो उसके किनारे थी जहाँ पर आर्यन आए थे। तो इस वजह से भी वो इंडस के किनारे वाला देश जो है वो इंडिया कहलाया। तो ये एक्चुअली वो ग्रीक ओरिजिन का टर्म है जिसको हम इंडिया कहते हैं, और बाद में फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो वो उसी तरह से उसको यूज करते थे। तो इसलिए हिस्ट्री का आइडिया होना बहुत जरूरी है। हालांकि हिस्ट्री इज ऑलवेज ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक, नथिंग, नो कंक्लूजन इज द फाइनल कंक्लूजन, और एक्सप्लोरेशन होंगे आप
आप देखेंगे कि फिर भारत नाम जो है वो वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। वो भी एक अलग एविडेंस है। तो एक चीज है, दो किताबें इस जमाने की बड़ी मशहूर है। फिर श्रुति पीरियड, फिर गुप्त पीरियड आया। गुप्त काल को तो जो हिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं कि इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है बहुत सारे सेंस में। स्वर्ण युग शायद इसलिए भी कहा जाता है कि जमाने में कालिदास और भवभूति जैसे लोग हुए। अमरकोश जैसा दुनिया की पहली डिक्शनरी थिसारस इसी काल में लिखी गई, गुप्त काल में। अमरकोश अमर सिंह ने लिखी। और जो नाटक लिखे गए, नाटक लिखने की एक कला है, नाटक कला जिसमें डायलॉग्स होते हैं। प्रोज लिखना, पोएट्री लिखना अलग चीज है, एक जॉनर है नाटक लिखना, कि नाट्य शास्त्र या नाट्य कला। तो इस पर बहुत एक ऑथेंटिक बुक है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो पूरे रूल्स एंड उसके तरीके बताते हैं कि हाउ टू राइट अ प्ले। उसमें डायलॉग्स कैसे होंगे, उसमें टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। इवन इन भरत मुनि's नाट्य शास्त्र ही टॉक्स अबाउट that how to utilize the space given on the stage, where to stand the anchor, and what place should be occupied by the on the dice, where कहाँ पर एंकर खड़ा होकर के बोलेगा, कहाँ पर परफॉर्मेंस होगी, पर्दे कैसे होंगे, कलर क्या होगी, कलर स्कीम क्या होगी, ऑडियंस कितने डिस्टेंस पर बैठेंगे। ऑल सच थिंग्स आर देयर इन भरत मुनि's नाट्य शास्त्र। तो उस जमाने में गुप्त पीरियड में जो ज्यादा सबसे बड़े एक नाटककार हैं जिनका नाम है कालिदास। और कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो सिर्फ लिटरेचर ना हो करके एंशियंट इंडिया का जो ट्रेडिशनल ट्रीजर है, मीन्स की रघुवंशा में किताब है जिसमें पूरे प्रभु राम का पूरा जो वंश है उसकी वो बात करते हैं। मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। उनके बेटे के नाम पर भी कुछ लोग कहते हैं कि भारत नाम पड़ा है। इसी तरह से और भी बहुत सी किताबें हैं, मृच्छकटिकम शूद्रक में लिखी बाद में। तो ये नाट्य शास्त्र, इसका डेवलपमेंट गुप्त पीरियड में हुआ है, नाटक लिखने की कला। फिर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं कि श्रुति पीरियड है, यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिटरेचर नहीं है, पूरा लिटरेचर श्रुति फॉर्म में है, जनरेशन टू जनरेशन। वन पर्सन इज लिसनिंग, रिस्टोरिंग द माइंड एंड इट इज ट्रांसफरिंग टू अनदर जनरेशन। फिर स्मृति पीरियड आता है जहाँ पर हमें कुछ लिटरेचर रिटन फॉर्म में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्मृति, ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरी दे आर कंपाइलिंग इट। तो ये 200 एडी का टाइम आ चुका था, और अब तक यहाँ पर लेखन का जो है वो विकसित हो चुकी थी। तो अब चूंकि इसलिए इसको स्मृति लिटरेचर इसलिए कहा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरी, व्हाट वाज देयर इन वेदास, व्हाट वाज देयर इन उपनिषद, व्हाट वाज देयर इन ब्राह्मण ग्रंथ एंड सूत्र ग्रंथ, on that basis they formulated some rules and regulations for the society, for the tribes, for kabila, for this and that, and performance like that. So that's what is called as Smriti literature. इसमें सबसे पुराना मनुस्मृति है, इस पर आगे आएंगे। Now an outline that is again given by Indian knowledge system by UGC। आपको जो एक करिकुलम भी मिला होगा, सिलेबस एक आप देखते होंगे, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, तो वो इसकी बात करते हैं। ये एक आउटलाइन है, छोटी सी आउटलाइन है कि ये एक कंपाइलेशन है क्लासिकल लिटरेचर का। हालांकि ये जस्ट एक ग्लिम्स है, इसमें भी साउथ इंडिया का लिटरेचर नहीं है, इसमें अभी ईस्टर्न इंडिया का लिटरेचर नहीं है, इसमें वर्नाकुलर्स नहीं है, लेकिन क्लासिकल लिटरेचर में इसको इंक्लूड किया जाता है। और रिसेंटली ये डिबेट चल रही है, बातचीत चल रही है कि अब भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको प्राचीन इतिहास या एंशियंट हिस्ट्री नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको क्लासिकल हिस्ट्री कहा जाएगा। मैंने आज यूज इसलिए टर्म किया कि क्लासिकल लिटरेचर ऑफ इंडिया, या क्लासिकल लेगेसी ऑफ लिटरेचर। तो क्लासिकल इसलिए प्रतिष्ठित, इसलिए कि जो लिखा गया हजारों साल पहले, आज भी उसके पैरेलल चीजें बहुत कम हमें मिलती है, या अगर मिलती भी है तो वो उसी का इंटरप्रिटेशन ही होता है। तो चाणक्य का शास्त्र है, क्लासिफाइज नॉलेज, बात कर चुके हैं इसमें। लेकिन वो अर्थशास्त्र में उस पुस्तक में चाणक्य बात करते हैं कि चार तरह की नॉलेज जो है वो उसमें उसका डिवीजन है। टाइप्स ऑफ नॉलेज इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स on the basis of the available books those times, because Chanakya is in during the Mauryan period,
300 BC, and by that time, the age of Vedic literature, age of Jain literature, age of what you say, the Jain literature or Buddhist literature, that was almost over, and everything was available either in the form of some written form or in the form of some Shruti literature. So कंटेम्प्रेरी अवेलेबिलिटी के बेसिस तो बताते हैं कि एक तो अनवेशिकी है, अनवेक्षिकी, अनवेक्षिकी से टर्म आया है अन्वेषण, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं अनुसंधान, हिंदी में अनुसंधान, अन्वेषण या रिसर्च। तो रिसर्च बेस्ड, क्योंकि रिसर्च इज द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक इनोवेशन, तो वो सारी नॉलेज इस अन्वेक्षिकी में आएगी इसके अंतर्गत, जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, फिलॉसफी है, क्योंकि साइंस इज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। साइंस जो है वो विज्ञान, और विज्ञान अमरकोश के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो अमर सिंह का ग्रंथ है, वो ये कहते हैं कि विज्ञान का मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो वहां पर विज्ञान का ये मीनिंग है अमरकोश में। फिर दूसरी कैटेगरी है त्रय। त्रय में खास करके वेदास को इंक्लूड करते हैं, खास करके तीन वेदास जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद बहुत बाद में लिखा गया है, उसका कंटेंट क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। वेद त्रय तीन है, उसमें फिर बाद में ब्रह्मसूत्र वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। और वार्ता, वार्ता एक टर्म है, ये जो टर्म है, आज मुझे यहाँ पर याद आया कि बहुत पहले IAS PCS के जब एग्जाम्स होते थे, उसके पेपर हमारे सामने आया करते थे, तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था हमें नजर के सामने कि वार्ता का मीनिंग क्या है एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में, और ये शब्द और टिल ने अपनी किताब में यूज किया, तो सब नहीं पता था, लेकिन बाद में जब उसकी आंसर शीट आई तो मालूम हुआ कि वार्ता जो है एग्रीकल्चर और कॉमर्स के लिए यूज किया, बड़ा पॉपुलर टर्म था, वो आज तक नहीं भूले, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया था। तो वार्ता जो है एग्रीकल्चर और कॉमर्स से रिलेटेड जितनी चीजें होती थी वो इसमें, इससे रिलेटेड जो वेल्थ है, जो नॉलेज। और तीसरा है दंड नीति, चौथा दंड नीति। दंड नीति ये वही शास्त्र की बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, ये तो चार तरह का जो ज्ञान है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र। अभी कंटेम्प्रेरी में आज ही, अगर आज के इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे क्वार्टरली म्यूजिक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आर्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चाणक्य कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें इसका एक्सटेंशन और आगे होगा। ये हम बात कर रहे थे थर्ड सेंचुरी BC की। फिर क्लासिकल लिटरेचर है जो IPS इंक्लूड होगा, इसमें चतुर्दश विद्या स्थान, मतलब जो अभी टर्म यूज किया था, 14 एरियाज हैं, 14 कैटेगरीज हैं, जिनमें 4 वेदास हो गए, 6 वेदांतास हो गए, तो 6 4 10 तो यही हो गए। फिर रामायण एंड महाभारत और पुराण इसको इतिहास की कैटेगरी में रखते हैं, ये हो गया। फिर धर्मशास्त्र, जिसमें स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, पारशर, बृहस्पति, देवल स्मृति, बहुत सारी, वो भी आगे देखते हैं, धर्मशास्त्र भी कहते हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फिर दर्शन, ये लेक्चर आप सुन चुके हैं पहले, ये 6 ऑर्थोडॉक्स हैं और 6 हेटेरोडॉक्स हैं। आपने शायद नए स्कूल्स पढ़े होंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इन ऑल 12 स्कूल्स हैं फिलॉसफी के, और भी आगे एक स्लाइड में मैंने, क्योंकि मुझे पता था उससे टेस्ट प्रश्न आ जाए, तो इसलिए वो 6 स्कूल्स हेटेरोडॉक्स कौन से हैं वो भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख कर लाया हूँ। फिर न्याय है, लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। नॉर्मली समझते हैं कि 6 स्कूल्स तो वो है, और 3 स्कूल से चारवाक हो गया और जैन और बौद्धिस्ट हो गए, तो इस तरह से 9 स्कूल्स हुए, लेकिन 9 और उपवेदा है, वो भी आगे देखेंगे, वेद के साथ उपवेदा, वेदांत, वेदांता, उपवेदा, ये टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। ये है वो 9 स्कूल्स। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। Can anybody of you, I just need one reaction from your side, can any one of you explain me what do we mean by orthodox system? Orthodox कौन सा सिस्टम, इसको ऑर्थोडॉक्स क्यों कहते हैं, why this is called orthodox? Any idea, anybody? The system is based on blind beliefs. Good evening, sir. Good evening, good evening. Just based on that, this is actually your interpretation, but in the context of Indian philosophy, in the context of the schools of philosophy, what is included in orthodox?
In what way you describe? The customs and traditions which have been inherited from one generation to another. No. Means Indian philosophy is categorized into two systems, orthodox and heterodox. What is the basis of this category? What is the basis of this categorization? In Hindi, we can call like that orthodox is Astic darshan or Nastic darshan in that. So what are the basis of orthodox and heterodox? Yeah. Yes, Mr. Ramesh, Dr. Ramesh, do you want to say something? Yes, sir. I agree with you. Because they are the basis. Orthodox, if you just convert in the Sanskrit term for this is the Astic darshan. Astic means those are in general parlance, we have the meaning that those who believe in God, that Worship. and heterodox, those who don't have faith in the existence of God in that way. But in classical terms, in the context of schools of philosophy, what do we mean by orthodox and heterodox? Okay, I'm just giving you the idea. I think you will remind आप सबको पता है, मुझे मालूम है, लेकिन और आपका सडन क्वेश्चन आ जाए तो वो माइंड में आता नहीं है, अभी आ जाएगा. ऑर्थोडॉक्स वो सिस्टम है जिसमें वो तमाम स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं जिनका ओराइजिन या जिनका बेसिस वैदिक लिटरेचर है. बस दैट्स इट. दोज हु हैव देयर रूट्स इन द वैदिक लिटरेचर, यानी जो ये बिलीव करते हैं कि हमारा अस्तित्व वैदिक लिटरेचर में. और हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स वो हैं जो अपने आप को वेदों से इंडिपेंडेंट मानते हैं. वी डोंट बिलीव करते हैं वेदा में, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो वैदिक लिटरेचर नहीं है. ये इंडिपेंडेंट है. दे डोंट हैव देयर रूट्स ऑफ आइडियाज इन द वैदिक लिटरेचर. जैसे सौतांत्रिका, वैभाषिका एंड योगाचार्य, ये और माध्यमिका, ये जो चार सिस्टम है ये एक्चुअली बुद्धिज्म के ही पार्ट है. फिर श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स है क्योंकि ये दे डोंट हैव देयर रूट्स इन द वैदिक लिटरेचर. दिगंबर जो है वो जैनिज्म से आता है. तो बुद्धिज्म के 5, बुद्धिज्म के 4 और जैनिज्म के 2 schools, they don't have their origin in the Vedic literature or Vedic text. और ये जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांता भी कहते हैं. They have their roots of origin in the Vedic literature. ये बेसिक डिफरेंस. यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का मतलब ईश्वर में विश्वास से नहीं है. आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों में अपना उद्गम मानते हैं, और नास्तिक दर्शन वो है जो ये कहते हैं कि हमारा ओरिजिन स्वतंत्र है, हम वेदों से हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारा जो चिंतन है वो वेदों से स्वतंत्र है. बस इतना सा डिफरेंस. तो श्रुति लिटरेचर का वन बाय वन बात करते हैं. ये जो श्रुति लिटरेचर है दैट इज नॉट इन रिटन फॉर्म. अब जब ये रिटन फॉर्म में नहीं है तो ये ओरल ट्रेडिशन की फॉर्म में है. ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, इट इज heard, it is compiled in the mind and it is transmitted to the next generation. 4 कैटेगरीज में है. संहितास कहलाते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, फिर आरण्यकास कहलाते हैं, फिर उपनिषद से. तो पूरा जो वैदिक लिटरेचर है दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स. संहितास में बेसिकली वेदास आ जाते हैं, 4 वेदास, ब्राह्मण ग्रंथ उसके बाद है, फिर आरण्यक ग्रंथ. वन बाय वन उसको देखते हैं. श्रुति का मीनिंग है व्हाट इज हर्ड, जो कुछ सुना गया, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रिवीलेशन. Whole of the literature seems to have been preserved orally, although there may have been early manuscripts to assist memory. तो पूरा लिटरेचर ये जो है ये प्रिजर्व किया गया है ओरली, लेकिन बाद में कंपाइल भी जब लेखन कला आ गई तो उसको कंपाइल किया जाने लगा. पहले मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, फिर पेड़ों के पत्तों पर लिखने लगे एंड सो ऑन. फिर कपड़े का जब आविष्कार हुआ तो उस पर लिखने लगे. अब श्रुति लिटरेचर में नंबर 1 है संहिता. फिर इसी तरह से डिस्कस करेंगे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद. ऋग्वेद एक हल्का सा आइडिया, आप सबको डिटेल हर जगह अवेलेबल है, बहुत ज्यादा है, तो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे. ऋग्वेद बेसिकली कंपाइलेशन है. इसमें वो मंत्र हैं इनको ऋचाएं भी कहते हैं, और हालांकि श्लोक टर्म मैंने नहीं समझा कि मैंने सुना नहीं कि वेदों की ऋचाओं के लिए कुछ श्लोक टर्म आया है. जब हमारे पास ये
श्रीमद् भागवत गीता आई है तब उसमें जो लिखा उसको श्लोक कहते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों के लिए टर्म ऋचा यूज किया जाता है। तो ऋचाएं हैं या हाइम्स है, जिनको मंत्र कहते हैं। इसमें देवताओं का डिस्क्रिप्शन है और ये 33 है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। 33 टाइप्स इसको बहुत ध्यान से रखिए, ये आगे तक के लिए बहुत काम आएंगे कि 33 नंबर जो है ऋग्वैदिक गॉड्स के यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसमें देखिए आप जो अभी भी कंटिन्यूटी की, तो बहुत सारे देवता इसमें कि जिनको हम भूल चुके हैं या आज जिनकी उपासना नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी रेलेवेंट बने हुए हैं। उनमें से सरस्वती नाम आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट लाइन में, सरस्वती देवी आज भी है। प्रजापति बाद में ये इसी पर एक कास्ट भी बन गई, आज के जमाने में कास्ट भी है प्रजापति। फिर आप देखिए इसमें शायद रुद्र शिव जी के लिए यूज किया जाता है। विष्णु भी इसमें एक वर्ड है। कुशन भी एक वर्ड है, हालांकि कुशन नाम के देवता आज नहीं है, लेकिन विष्णु की आज भी उपासना होती है। विश्वकर्मा, अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था इस पर, और उन्होंने तमाम जो कर्मकार हैं और इस पर पूजा वगैरह होती है, हमारे जो टूल्स होते हैं, कारीगर होते हैं, कामगार होते हैं, तो विश्वकर्मा दिवस मनाया गया पूरे देश में। ये एक देवता। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, सूर्य भी एक देवता है, आज भी पूजा होती है। मेरे ख्याल से जो लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एक मंत्र पढ़ा जाता है गायत्री मंत्र। हम में से बहुत कम लोगों को पता होता है, हालांकि ज्यादातर को पता होता है, लेकिन ये गायत्री मंत्र किसके लिए पढ़ा जाता है, किसके लिए उपासना होती है? तो एक्चुअली ये सूर्य देवता के लिए पढ़ा जाता है, और उसमें एक टर्म आता है सवित्र, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, होता है देवस्वतः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, तो ये जो सवित्र वर्ड है, ये वैदिक हमारे ऋषियों ने सूर्य की उपासना के लिए यूज किया। सवित्र सूर्य का नाम है। और आप साइंटिफिक आइडिया देखिए, आज हम कह तो देते हैं कि अरे भाई वेद की क्या बात करें, वो तो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं इसकी, लेकिन कितना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि सूर्य की उपासना क्यों कर रहे हैं। इस मंत्र को जब आप इसका ट्रांसलेशन पढ़िए और खुद भी बच्चों को भी बताइए और अपने घर में भी सबको बताइए, तब देखिए इस मंत्र को जब आप उच्चारण करेंगे तो उसका प्रभाव और कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो वो कहते हैं वैदिक ऋषि कि सूर्य जो है, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट ओनली फॉर दिस एंटायर यूनिवर्स बट ऑल्सो फॉर आवर स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। और आज साइंस भी वही बात करती है। साइंस भी कह रही है कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। और आज हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगे हुए हैं ज्यादातर घरों पे भी, यूनिवर्सिटीज में भी। तो ये तो वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले ये बात कर दी, लेकिन हम इसलिए इसको बड़ा, वही टर्म ऑर्थोडॉक्स जो आप में से किसी ने बताया कि बड़ा एक माइंड में आता, ऑर्थोडॉक्स मतलब अरे बड़ा बैकवर्ड है, प्राचीन है, ऐसा है। तो जब संस्कृत में हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अरे धार्मिक होगा, है ना। तो भाषाओं के जब हम धर्म बताने लगेंगे, रिलीजन बताने लगेंगे, तो अपने आप ही नैरो माइंडेडनेस आएगी। अब वहां पर सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और वही बात साइंस कह रही है और अंग्रेजी में कह रही है, तो समझ में आ रही है। संस्कृत में वही बात लिखी हुई है, तो वो हम उसको धार्मिक समझ रहे हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई साइंटिफिक टेम्पर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी बात साइंटिफिक टेम्पर की इसमें भी बात की गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बात की है। और ये टर्म एक्चुअली सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने यूज किया था। स्कूलों में करिकुलम में साइंटिफिक टेम्पर को भी इंक्लूड किया जाए। और एक बड़ी अच्छी किताब है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद यहाँ कहीं अवेलेबल, एंजल्स एंड डेविल्स। ये एनबीटी क्या है अभी दिख नहीं रही, मैं आपको दिखा देता स्क्रीन। एंजल्स एंड डेविल्स, तो ये किताब है, एनबीटी ने पब्लिश की साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर। इसको जरूर पढ़िएगा और अपने घर में भी और अपने स्टूडेंट्स को भी इसको सजेस्ट कीजिएगा। इसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और ये जो 10 मंडल हैं उनके जो नाम है वो वैदिक ऋषियों पर हैं, इनके नाम।
10 मंडल का मतलब 10 चैप्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो 10 चैप्टर है वो बाद में लिखा गया। स्टार्टिंग हुई है सेकंड मंडल से, और वो जो ऋषियों के नाम है उनके भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋषि ग्रत समद हैं जिन्होंने सेकंड मंडल की रचना की। अब रचना उस सेंस में नहीं है कि उन्होंने रिटर्न किया, मतलब ये कहा जाता है कि वेद जो है वो अपौरुषेय है, मतलब नो बडी कंपाइल्ड इट, नो बडी रोट इट। In the deep meditation, in the state of deep meditation, the rishis found that something is revealing in their heart, in their mind. तो जब वो एक बड़ी गहरी साधना में थे, तब उनको लगा कि उनके अंतर मन में या उनके माइंड में या उनके हार्ट में, उनके मन में कोई चीज उतर रही है, जिसको रिविलेशन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की है, ये डीप मेडिटेशन में उनको इसका ज्ञान हुआ, जिसको कहते हैं। तो एक रिविलेशन है एक तरह का। तो जिस ऋषि को जो ज्ञान हुआ, उन्होंने फिर उसे अपने या कंठस्थ किया, याद किया, मेमोराइज किया, और फिर अगली जनरेशन को उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से वो श्रुति बनी। तो जो सेकंड मंडल है ऋग्वेद का, सेकंड चैप्टर है ऋषि ग्रत समत का है। थर्ड चैप्टर विश्वामित्र ने इसको कंपाइल किया। फोर्थ चैप्टर वामदेव ने किया। फिफ्थ चैप्टर अत्रि ऋषि ने किया। सिक्स भारद्वाज ऋषि ने किया। और सेवेंथ है वशिष्ठ ने। और एट्थ एंड नाइन्थ है कणव और अंगिरा। फर्स्ट एंड 10th जो है ये मंडल बाद में जोड़े गए हैं। और एक टर्म आता है पुरुष सूक्त का। इस पर बहुत सारे सवाल लोग करते हैं कि पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णों का पहले डिस्क्रिप्शन हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में, और इसको बहुत बाद में लिख करके ऐड किया गया है। ओरिजिनल वेदा में या ओरिजिनल जो मंडल थे उसमें ये नहीं था। ये समय के साथ, और ये ऋग्वेद कोई एक टाइम पर नहीं लिखा गया है, ये सैकड़ों साल तक साधना चलती रही और लोगों को जो मिलता रहा वो उसमें ऐड होता चला गया। तो ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर लिखी हुई कोई किताब या कोई एक पर्टिकुलर ग्रंथ नहीं है, ये सैकड़ों साल की साधना के बाद है। इनकी ब्रांचेस हैं फिर अलग अलग, शाकल, वाशकल, आश्वालायन, सांख्यन, मांडुक्य। इस पे अभी समय नहीं है डिस्कशन करने का। इसमें 1028 मंत्र हैं, हाइम्स हैं। तो ऋग्वेद जो है वो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 9 नदियों का भी इसमें वर्णन है ऋग्वेद में, जिनमें से गंगा और यमुना तो है ही। गंगा का वर्णन जो है वो 2 बार हुआ है, यमुना 3 बार हुआ है। इसके अलावा जो हमारी 5 नदियां हैं, जिन पर हम नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है पंजाब। पंजाब एक्चुअली पर्शियन का टर्म है, पंज कहते हैं 5 को, पर्शियन से ही पंजाबी में गया। और आब कहते हैं पानी को पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में। तो पंजाब यानी 5 नदियों से सिंचित प्रदेश, वो पंजाब कहलाया। तो वो 5 नदियां कौन सी थी? आज उनका नाम है सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम। ये है। लेकिन वेदों में, ऋग्वेद में पर्टिकुलरली इनका नाम है शतुद्री, परुष्णी, विपाशा, वितस्ता और अस्किनी। अस्किनी चिनाब को कहते हैं, शतुद्री सतलज है, विपाशा व्यास है, परुष्णी जो है वो रावी है, और वितस्ता जो है वो झेलम है। और इसके अलावा एक नदी और है जो भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। इट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस माइथोलॉजी ऑल्सो। इसको माइथोलॉजिकल रिवर कहते हैं। ये है सरस्वती। और ये धारणा है, ये विश्वास है कि गंगा और यमुना बहते हुए जब संगम पर पहुंचते हैं, इलाहाबाद आज का प्रयागराज, तो वहां पर सरस्वती नदी जमीन के नीचे से, धरती के नीचे से आती है और संगम पर मिलती है। और वहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म भी आई थी, गंगा जमुना सरस्वती। तो इस सरस्वती नदी जो है वो वेद में, ऋग्वेद में इसका जो है वो वर्णन है। और इसका नाम जो है वो दृष्टावती के नाम से। तो जब आप ऋग्वेद ढूंढे और उसमें कहें कि सर ने तो बताया था कि कहाँ गई वो नदी, तो वो उसका नाम आपको सरस्वती नहीं मिलेगा, उसका नाम दृष्टावती के नाम से मिलेगा। बाद में जब ट्रांसलेशन वगैरह हुए तो हो सकता है बाद में उसका नाम सरस्वती मिल जाए, और कहीं कहीं घग्गर भी उसका नाम मिलता है। और फिर सिंध है, सिंधु नदी है, जिसके किनारे आर्यन आए थे और सेटल्ड हुए। अब फिर आगे बढ़ते हैं। और एक पर्टिकुलर चीज और भी है कि हर वेद को रिसाइट करने का काम एक स्पेशलाइज्ड ब्राह्मण या पुरोहित के पास होता था। तो जो वैदिक मत, जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता है कि भाई मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री है तो एक पर्टिकुलर टीचर पढ़ाएगा।
और अलजेब्रा जो है वो दूसरा टीचर पढ़ाएगा। तो विद इन द वन एरिया जो स्पेशलाइज्ड है किसी चीज का, वो सब्जेक्ट उसको दिया जाता है। तो इसी तरह से ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है उसको होत्र कहते हैं, पर्टिकुलरली एक नाम। फिर दो लिटरेचर संहिताज में, तीसरा यजुर्वेद और सामवेद भी है। यजुर्वेद की एक खास बात यह है कि ये कलेक्शन ऑफ मंत्रास हैं, वो वाले मंत्र कि जो सिर्फ देवताओं की स्तुति के लिए नहीं है, बल्कि अब चूंकि यहाँ पर कर्म कांड हो गया था, कि पहले ये होता था कि देवताओं का सिर्फ नामों का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे होता था ना कि हम अपने बचपन में देखते थे कि दादियां और नानियां मंदिरों में जो बैठी हुई होती थी, कोई ज़ईफ महिला है, कोई बूढ़ी महिला है, तो वो एक कापी के ऊपर राम 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 लिखा करती थी। छोटी सी कापी होती थी और उसका वो पेंसिल से राम 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 लिखा करती थी। तो हम भी जाया करते थे। अब तो खैर माहौल जमाना बड़ा बदल गया है, अब तो मंदिरों मस्जिदों सब पे बोर्ड लग गया है कि कौन आ सकता है इसमें, कौन नहीं जा सकता है। लेकिन मैं अपने बचपन में खूब मंदिरों में जाता था, और वहाँ पर लड्डू खाने को मिलते थे। पंडित जी हमारे लिए बात खास करके रखते थे बच्चों के लिए। तो वहां पर हम देखते थे कि कोई वृद्ध महिला बैठी हुई है, कोई दादी हम उनको कहते थे। अब वो कापी से लिख रही हैं अपने राम 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 करके, और होता था कि 1001 बार लिखना है। तो हम उनके हाथ से पेंसिल ले लेते, हम कहते दादी हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी। तो कहते कि हमें सूर्य डूबने से पहले ये पूरा 1000 बार करना है। हम कहते हम लिख देंगे, लेकिन अपना वाला लड्डू आप हमें दोगे? वो कहते हाँ बेटा ले ले, खा ले, लेकिन नहीं थे। तो हम जो भी स्कूल जाने वाले थे, तो हमारी राइटिंग अच्छी भी थी और स्पीड में थी। हम 5 मिनट में 1000 बार लिख देते थे, जल्दी 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 करके 5-10 मिनट में, और वो एक लड्डू मिल जाता था। तो बड़े अच्छे दिन थे। वो सब इतिहास की बातें हो गई। अब तो जमाना बड़ा बदल गया है। अब तो आपको सब देखते ही हैं आसपास, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, मज़ारों पे जाना, ये एक बड़ा मुश्किल हो गया है। तो यजुर्वेद में जो है वो इस तरह के प्रोसीजर्स थे कि अब जो है सिर्फ राम 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 कहने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, या ब्रह्म 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 का जाप करने से नहीं होगा, मेडिटेशन करने से नहीं होगा। अब आपको कुछ कर्म कांड करना होंगे, और उनमें था यज्ञ करना। अब आपको कुछ पूजा पद्धति की जो तरीके हैं वो विकसित होने लगे धीरे धीरे। अभी तक देखिए कोई मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, वेदों में कहीं मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं, देवताओं की मूर्तियों का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। लेकिन यजुर्वेद से जब कर्मकांड स्टार्ट हो रहे हैं, यानी अब देवताओं की स्तुतियां करने के लिए सिर्फ आपको मंत्रों का उच्चारण नहीं करना, अब आपको एक वेदी बनानी है, उसमें कुछ सामग्री है, और उस सामग्री को आग में जला करके उसकी आहुति देनी है, और फिर देवताओं का आह्वान करना है। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है यजुर्वेद से। तो अब इसीलिए आप देखिए कि इसका जॉनरा भी चेंज हो रहा है। इसलिए ऋग्वेद जो है वो सिर्फ पोइटिक फॉर्म में नहीं है। ऋग्वेद पोइटिक फॉर्म में, यजुर्वेद प्रोज और पोइट्री दोनों में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यजुर्वेद, कि ऋग्वेद के मंत्र जो है वो सिर्फ पोइटिक फॉर्म में, ऐसा लग रहा है कि कविता के फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन यजुर्वेद प्रोज में भी है। तो इसलिए इसके 2 पार्ट्स हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है और एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो पोइटिक फॉर्म में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है प्रोज की फॉर्म में है, यानी पैराग्राफ में है। और इसकी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिकली परफॉर्मिंग रिचुअल्स कर्म कांड के लिए ये लिखा गया। और इसकी भी ब्रांचेस हैं, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेय, कपिस्थल, बाद में यही फिर उपनिषद के भी नाम हुए हैं। और शुक्ल यजुर्वेद की ब्रांच है मध्यान्ह है, कणव है, वाजस्नेयी संहिता भी इसको कहते हैं, क्योंकि वाजस्नेयी जो थे वो उनके पुत्र थे, शायद याज्ञवल्क्य के, तो उनके नाम पर ये रखा गया वाजस्नेयी संहिता। फिर इनका भी पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज पुरोहित होता था जो यजुर्वेद के खाली मंत्रों का उच्चारण करेगा, वो अध्वर्यु कहलाता था। सामवेद अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए सामवेद इंपॉर्टेंट है कि इसमें वो हाइम्स हैं जो गाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से म्यूजिक की शुरुआत हो गई। आप देखिए कैसे ग्रेजुअल चीजें हो रही हैं। पहले से मंत्र का उच्चारण हो रहा है, देवताओं को याद किया जा रहा है। फिर देवताओं को याद करने के लिए हमने कुछ रिचुअल्स भी बना लिए, पूजा पद्धति भी विकसित कर ली, और उनमें सबसे पहली पद्धति थी यज्ञ करना। अब उसके बाद कहा कि भाई मंत्र का उच्चारण करने में वो आनंद नहीं आ रहा है, वो उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो अब उसको फिर सुर और ताल के ऊपर गाया जाने लगा। मतलब गाने जाने वाले, चैंटिंग करने वाले जो मंत्र हैं, अब जब चैंट किया जाने लगा, गाया जाने लगा, तो यहाँ से फिर म्यूजिक या संगीत का जन्म होता है। तो सामवेद को कहा जाता है कि इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ म्यूजिक, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ संगीत। और अभी आप देखिए पूरे विश्व में
अंधेरा है, कहीं पर कोई बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर संगीत का जन्म हो रहा है। इसलिए तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात ही कुछ अलग है। आप एक कोई सा भी राग बागेश्वरी सुन लें, या राग कोई सा भी आप सुन लीजिए, उसके ऊपर हर राग हर समय पर अलग अलग गाया जाता है। रात के राग अलग हैं, शाम के अलग हैं, सुबह के अलग हैं। राग है, सुर है, ताल है, लय है, ये सारे टर्म्स यहाँ से आ रहे हैं। इसकी ब्रांचेस हैं कौमुदनीय और जैमिनीय, राणानीय। फिर वेद व्यास को कहा जाता है, जैमिनी जो है वो वेद व्यास के डिसाइपल थे। आचार्य शुक्रामणि ने बाद में इसको, सुकर्मा ने बाद में इसको और एक्सटेंड किया, और इसमें जो ऋचाएं हैं वो 78 न्यू ऋचाएं हैं। बाकी पुराने मंत्र हैं ऋग्वेद के, जिनको फिर संगीतबद्ध किया गया। जैसे आजकल होता है ना कि पहले कवि है वो गाना लिख करके देगा, और जो संगीतकार है वो उसको संगीतबद्ध करेगा, फिर वो गाना एक लिरिक जो है वो एक सॉन्ग की शक्ल में आ जाएगा। वो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके जो पुरोहित हैं वो उद्गाता कहलाते हैं। नाउ द फोर्थ वन, श्रुति लिटरेचर इज 58 हो गया। आई हैव जस्ट 10-15 मिनट्स, आई विल कंटिन्यू बाय 10, बाय 7-10 आई विल लीव। श्रुति लिटरेचर संहितास में ही अथर्ववेदा, ये अथर्वा ऋषि इसके कंपाइलर हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि इट वाज कंपोज्ड ऑफ आफ्टर all the three Vedas, और काफी बाद में in a very later period it was composed, it was compiled. So it has a clear influence of the social changes as well as socio-economic transformation of the society. क्योंकि जब इसका कंपाइलेशन हुआ अथर्ववेदा का, तब तक समाज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके थे। कबीले बढ़ चुके थे, कबीले जो थे वो परिवार बढ़ चुके थे, ट्रेड भी हो रहा था, और बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उससे समाज में एक व्यवस्था जो है वो चेंज हो रही थी, बदल रही थी। और लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि जो ह्यूमन थॉट है वो कई फॉर्म्स में होती है। एक फेथ की फॉर्म है कि एक विश्वास है, और विश्वास जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अंधविश्वास बन जाता है। और एक प्योर थॉट होती है। जैसे अक्सर हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो उसमें एक टर्म यूज करते हैं ना कि एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है, और एक कुतर्क होता है। तो अब ये समझना बड़ा जरूरी है इन चीजों को, कि ह्यूमन थॉट के कितने रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ विश्वास की बात कर रहे थे कि हाँ ये 33 वैदिक देवी देवता हैं, इनकी इस तरह से पूजा करनी है, इस तरह से मंत्र को गाया जाना है। फिर एक ये होता है कि भाई अगर हम एक मंत्र भूल गए, अब डर लगा अब क्या होगा, भगवान हमें श्राप देगा, या ये मंत्र का गलत उच्चारण कर दिया, ये यज्ञ हमें सूरज निकलने से पहले करना था, हमने सूरज निकलने के बाद कर लिया, अब क्या होगा। व्रत रखा था और अचानक भूल के कुछ खा लिया, अब क्या होगा। तो ये डर जो है वो इंसान के बहुत सारी सोच को बदलने की कोशिश करता है। तो यहाँ से फिर फेथ, सुपरस्टिशन, बीमारियां आई, उनसे कैसे निजात पाई जाए, उनका इलाज क्या है। फिर मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप किसी ने दे दिया, किसी का दिल दुखाया, उसने कह दिया जाओ तुम्हारा भगवान, किसी ने कहा भला करे, किसी ने कहा बुरा करे। अब वो डर गए, कह रहे उन्होंने श्राप दे दिया, क्या होगा। या किसी के पास गए और कहा कि अरे हम तो उसके पास गए और उसने तो हमें अपने वश में ही कर लिया, तो वशीकरण हो गया। किसी ने ब्लेसिंग्स दे दी, आशीर्वाद, पीनेस, प्रायश्चित। अब जैसे किसी ने गलत काम किया, गुरु ने कहा अब इसका प्रायश्चित करो, 100 लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिला दो। तो ये नए नए आइडियाज जब सोसाइटी में आए, ये सब विचारों के रिफ्लेक्शंस हैं, अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं। वर्शिप है, ब्यूटी है, मैरिज है, मदरलैंड है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अथर्ववेद में ये टर्म आया है, मदरलैंड जो है, मातृभूमि। या तो ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स, अब देखिए ये किसी वेद में नहीं मिल रहा है, ना ऋग्वेद में या यजुर्वेद में ना सामवेद में। अथर्ववेदा इसलिए बड़ा सोशलिस्टिक एक तरह की बुक है। और फिर यहाँ से आगे चल करके आप देखिए कि 4 उपवेदास हैं जो कैटेगराइज्ड हैं। आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्ववेद और शिववेद, जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्किल्ड है, पर्टिकुलरली स्किल्स की बात कर रहे हैं। आयुर्वेदा इज समथिंग रिलेटेड टू द हेल्थ साइंसेस, धनुर्वेदा इज समथिंग टू द मिलिट्री साइंसेस, आर्चरीज, गंधर्ववेदा इज समथिंग टू द म्यूजिक, जो सामवेद में ओराइजिन हुआ था, गंधर्व वेद में पूरी उसकी फॉर्म आ गई। इसमें हमें सुर भी मिलते हैं, इसमें हमें समय भी मिलता है इस तरह से। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का भी इसमें जिक्र है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे कैसे गाया जा सकता है।
और शिल्प वेदा जिसमें आर्किटेक्चर का जिक्र होता है। यानी यहाँ तक अब जब ये अथर्ववेदा लिखा गया तो उसके बाद के समय में ये उपवेदास हुए, यानी अब तक इमारतें बनना शुरू हो गई थी। पहले जंगलों के नीचे, पेड़ों के नीचे जंगलों में पढ़ाई होती थी, गुरुकुल आश्रम होते थे, क्योंकि उस जमाने में ईंट पत्थर की इमारतें नहीं बनती थी, इसलिए गुरुकुल होते थे। अब शिल्प वेद होने लगा, यानी पहले लकड़ी के महल बनाए जाने लगे, फिर उसके बाद ईंट पत्थरों के बनने लगे, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब दूसरे ब्राह्मणास, ब्राह्मण लिटरेचर, ये जो यजुर्वेद में जो कर्मकांड स्टार्ट हुआ था, अब पर्टिकुलरली यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया जिसमें सिर्फ कर्मकांड की ही बात की जाएगी। उसमें एक्सप्लेन किया गया कि विच यज्ञ इज इंपॉर्टेंट फॉर विच पर्पस, पर्पस ऑफ पर्टिकुलर यज्ञ। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई मनुष्य को पढ़ाई लिखाई करना है तो एक पर्टिकुलर तरीके का यज्ञ होगा, या अगर उसको पूरे विश्व को जीतना है तो एक अलग तरीके का यज्ञ होगा। उसमें से आपने बहुत से नाम सुने होंगे। एक है अश्वमेध यज्ञ, जो श्री राम ने भी किया था, और उनका घोड़ा जो है वो पकड़ लिया था लव और कुश ने। फिर उत्तरकांड में उसकी लड़ाई होती है पिता की और पुत्र की, यानी लव कुश की और राम के बीच में। हालांकि ये पूरा एपिसोड रामायण में नहीं है, लव कुश वाला जो है ये भी इंडियन लिटरेचर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक है कि ये कहाँ से जोड़ा गया रामायण में। जो हम रामायण का बाद का पार्ट हम देखते हैं कि लव कुश के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, और फिर वो सीता जो है, चूंकि रामायण तो वहां खत्म हो जाती है जहाँ पर सीता जी जो है वो जमीन में चली जाती है, तो एक भवभूति रहे हैं गुप्त काल के बाद, बहुत बड़े संस्कृत के साहित्यकार रहे। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है शायद उत्तर रामचरित या उत्तर रामायण करके कुछ नाम है उनका, भी आगे आएगा। तो वो वहां से शुरू करते हैं रामायण की कथा जहां पर एक्चुअल वाल्मीकि रामायण खत्म होती है। तो आप कंटिन्यूटी और कंसेंसस देखिए, वो राइजिन हमें पता होना चाहिए कि रामायण में तो वो चीज है नहीं। सवाल फौरन खड़ा कर दिया कि अगर रामायण में नहीं है तो ये किसने लिखा है, तो वो मालूम होना चाहिए। इसीलिए IKS पढ़ रहे हैं कि वो भवभूति ने लिखा है वहां पर, उत्तर रामायण जिसको कहते हैं। फिर इसमें जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसमें संहिता रिफर्स टू प्रेजिंग और वर्शिपिंग, श्रुति प्रधान। संहिता जो थी वो स्तुति प्रधान थी, यानी जो संहिताएं थी, यानी जो 4 वेद थे उसमें स्तुति थी, देवताओं की वर्शिपिंग थी, तारीफ थी, प्रेजिंग थी। और ये जो है ब्राह्मण, ये विधि प्रधान है। इसमें प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेक्रीफाइस, हाउ टू पे ऑडिशन टू द गॉड्स, for what purpose we are performing, which kind of ritual, all those things are there. And again, you see that for all Vedas there are separate Brahman books. For each Veda there is some कर्मकांड is attached later on. सिर्फ हम मंत्र मत पढ़िए, इसके साथ ये कर्मकांड भी करता है। तो ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय एंड कौशितकी है, यजुर्वेद के साथ तैत्रेय एंड शतपथ है। इसमें लार्जेस्ट जो है वो शतपथ ब्राह्मण है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 रिचुअल्स दिए हुए हैं, 100 से ज्यादा। सामवेद, षड्विंश है, तांड है, जैमिनीय है, अथर्ववेदा है, गोपथ है। अब आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए हमारे समाज का सिनेरियो अपने घरों में, कि जब पंडित जी आते हैं जो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और कराते रहते हैं अपने घरों पर। पंडित जी आते हैं और आप कहते हैं कि भाई पंडित जी हवन कराना है। अब आजकल एक टर्म हवन यूज हो रहा है, वो यज्ञ के लिए यूज करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं किस लिए कराना है? इसलिए कराना है कि भाई मेरा बेटा जो है वो, उसकी शादी होने वाली है, वो चाहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे, नई बहू आने वाली है। तो फिर पंडित जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं सामग्री लिख देता हूँ। अब वो एक, आजकल तो पूरी रेडीमेड है, वो अपने बैग में से निकालते हैं सामग्री और आपको दे देते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि आप कहते हैं ये कहाँ मिलेगी, तो पंडित जी कहते हैं अच्छा लाओ, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, इतने पैसे दे दो, मैं खुद ही ले आऊंगा। ये सिनेरियो जनरल सिनेरियो है हमारे समाज में। आप कहेंगे किसी और पर्पस के लिए करना है, किस लिए करना है, कि भाई अब वो बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है, उसके लिए कि वो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो सुरक्षित रहे, तो उसके लिए हवन कराना है। तो पंडित जी फिर कहेंगे कि अच्छा इसके लिए दूसरी सामग्री आएगी, तो वो एक दूसरी लिस्ट देंगे आपको। तो ये जो सिनेरियो है, इसकी बैकग्राउंड है ये ब्राह्मण ग्रंथ। इस ब्राह्मण ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि कौन से पर्पस के लिए कौन सा यज्ञ किया जाएगा, उसका समय क्या होगा, उसमें क्या मंत्रों का उच्चारण होगा, उसमें क्या क्या सामग्री होगी, उसका जो हवन कुंड है उसकी नाप तोल क्या होगी। बाद में फिर एक कल्प सूत्र लिखा गया, उसमें वो हवन कुंड कितना बड़ा होगा, कौन सी लकड़ी होगी,
अग्नि में कौन सी सामग्री डाली जाएगी, खास करके वो घी का इस्तेमाल करते हैं, देसी घी का। तो ऑयल वगैरह नहीं यूज करते हैं कि आपने केरोसिन डाल दिया या स्पिरिट डाल दिया, वो नहीं, वो सामग्री होती है। आजकल तो 5 स्टार होटल में वो लोहे का वो बना करके आयरन का, और उसमें घेरे हो जाते हैं, समय के साथ साथ बदलाव है। तो ओराइजन पता होना जरूरी है, बाकी हर इंसान स्वतंत्र है अपने हिसाब से चीजें करने में। अथर्ववेदा का जो है वो गोपर है। फिर थर्ड लेवल पे आते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ वो हैं जो जंगलों में जब वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, तो वहां पर बैठ करके, अब ये चीजें देखिए ब्राह्मण ग्रंथ तक आते आते इतने कर्मकांड हो गए कि वो शतपथ ब्राह्मण में जो है 100 से ज्यादा कर्मकांड हो गए। अब आदमी परेशान हो गया, हिसाब सामग्री नहीं मिल रही है, या इतने पैसे ही नहीं है, या हर कर्मकांड के लिए किसी पुरोहित को बुलाना है, ब्राह्मण को बुलाना है, हम खुद कर नहीं सकते, तो आदमी परेशान हो गया। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्यों कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति तो बगैर कर्मकांड के भी हो सकती है। ईश्वर को तो हम मन में याद करते हैं, ईश्वर के लिए हमें तपस्या करने जंगल क्यों जाना है, हम तो अपने आप मन में भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ से चिंतन शुरू हुआ, ज्ञान शुरू हुआ। चिंतन और ज्ञान की परंपरा अरण्य ग्रंथों से पड़ती है। यहाँ पर सवाल करने लगे कि ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है कि पाप लगेगा तो ये होगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका असर ऐसे होगा, ये जादू है, ये टोना है। तो इसको मनुष्य ने सोचना शुरू किया। तो जब सोचना शुरू किया तो वहां से दर्शन की शुरुआत हो गई। जब दर्शन की शुरुआत हुई तो अरण्यक ग्रंथ जो है दे आर द सीड्स फॉर लेटर फिलोसफिकल स्कूल, जो आप 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पढ़ते हैं। और वहां से फिर जो फोर्थ लिटरेचर आएगा वो है, अब देखिए अरण्य के सब्जेक्ट भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फास्ट, एक्टिविटीज एंड सेक्रीफाइसेस, लिविंग इन वानप्रस्थ आश्रम, कि आप व्रत रख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं जब आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं। स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस, कि जब यज्ञ आप करते हैं तो उसका सिर्फ मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ही नहीं, वो जो अग्नि जल रही है वो अग्नि को माना गया है कि देवताओं और मनुष्य के बीच में अग्नि जो है वो एक मीडिएटर। दैट्स वाई हम कहते हैं स्वाहा। तो स्वाहा का मतलब जल के खाक होना नहीं है, आग में जल गया और अग्निदेव उसको देवताओं तक आपकी आहुति को पहुंचाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सैक्रिफाइस। तो उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सम आर्यनकास, ऐत्रेयी, सांख्यायन, तैत्रीय, ये सब उसके हैं अरण्य ग्रंथ के, इसको छोड़ दीजिए। फिर फोर्थ है उपनिषद। उपनिषद में आते आते ये पूरे प्योरली दे आर द फिलोसॉफिकल लिटरेचर, दे आर द फिलोसॉफिकल बुक्स। इसको लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर भी कहते हैं। उपनिषद का मीनिंग होता है कि sitting near the teacher, the disciple is sitting near the teacher and teacher is imparting the knowledge. He is just unveiling the mysterious aspect of knowledge, highest form of thinking है, freezer of Indian philosophical zenith है, mystical dimension of what you call the divine knowledge and realization. शंकराचार्य ने एक्चुअली 10 उपनिषद का इंटरप्रिटेशन किया है, तो वही आज सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। जस्ट 1 minute, one phone call is coming, I am just giving it. सो चूंकि 108 उपनिषद तक उनकी संख्या मानी गई है, लेकिन चूंकि सबसे 10 जो है वो ऑथेंटिक उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, केन, पट, प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडूक्य, तैत्रीय, ऐत्रेयी, छांदोग्य, बृहदारण्यक। एक अक्सर आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, तो हमें बस बचपन से स्कूलों में पढ़ाया गया है कि ये इसमें मुंडक उपनिषद से ये शब्द लिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में तो किसी ना किसी उपनिषद से वो आते हैं। इनके फीचर्स क्या है, एक तो ये कि परम ब्रह्म इंस्टेड ऑफ पॉलिथिज्म। अभी तक जो वैदिक में, जो संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में जो अनेक यानी 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स का जिक्र हो रहा था, यहाँ पर वो सिर्फ एक ब्रह्म की बात करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना, जो मैंने लास्ट उसमें किया था कि एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक ही है, विप्र लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से उसकी बातें करते हैं। तो वो एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उपनिषद पे कंसेंसस हो गया। क्या पॉलीथीज्म अलग अलग वो 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स नहीं है, बल्कि ब्रह्म तो एक ही है और उसको आप अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दे क्रिटिसाइज एनिमल सैक्रिफाइस एंड ओवर एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स।
अब चूंकि यज्ञ में आहुतियां भी दी जाती थी, पहले अग्नि जलाई जाती थी, बाद में कहीं कहीं ये भी दृष्टांत मिलते हैं कि एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस किया जाता था, और उसमें कुछ इस तरह के एविडेंसेस हैं। तो उपनिषद जो है वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो उसके एनिमल को सेक्रीफाइस करने की क्या जरूरत है। और रिचुअल्स पर इतना ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि मनुष्य अपना वास्तविक मकसद ही भूल जाता है। तो ये फिलोसफिकल ग्रंथ है। नॉलेज एंड रियलाइजेशन इज मेन थीम है। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, रियलाइजिंग ब्रह्म, ज्ञान की बात करते हैं। फिर उपनिषद, ये उस दिन भी डिस्कस हुआ था कि बाद में जब मेडिवल पीरियड में हम लिटरेचर को देखेंगे किसी और समय पे, दाराशिको वाज द फर्स्ट पर्सन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड हु ट्रांसलेटेड 52 उपनिषद्स इन संस्कृत, सिर अकबर के नाम से। और उसके बाद ये लैटिन में ट्रांसलेट होते हैं, यूरोप पहुंचते हैं, लैटिन से फिर ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट होते हैं, और उसके बाद फिर ये मैक्स मुलर तक पहुंचते हैं। और मैक्स मुलर जब इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है तब ये पूरे विश्व तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये एक चेन है, और फिर पूरा विश्व जानता है कि हाँ ये उपनिषद क्या है। उपनिषद बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड डायलॉग्स एंड दे टॉक अबाउट द हाईली स्पिरिचुअल टॉपिक्स। अब जैसे यम और नचिकेता का संवाद है तो वो मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, यम नचिकेता संवाद है। या गार्गी और याज्ञवल्क हैं, इनमें ब्रह्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उस पर बात हो रही है। या अगर आप देखें ये जो पराविद्या और अपराविद्या है इस पर बात हो रही है। उद्दालक आरुणी और श्वेत केतु के बीच में उस दिन डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में, गॉड एंड डेमन्स के बीच में। अब इसमें एक उपनिषद है जिसमें इंद्र और जो राक्षसों का राजा है विरोचन, ये दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि भाई आत्मा के लक्षण क्या है, क्योंकि इन्होंने सुना कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा कभी मर नहीं सकती। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया है ये छांदोग्य इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में। तो यहाँ पर विरोचन और इंद्र जो हैं वो दोनों ही ब्रह्म के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान दूंगा। तो विरोचन जो है वो चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, रोज रोज की लड़ाई से तो अच्छा है कि एक बार अमर हो जाए तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो वो उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं कि 25 वर्ष तक खड़े रहो, तपस्या करो, उसके बाद आना। तो दोनों 25 वर्ष तक खड़े रहते हैं, इंद्र और विरोचन, और 25 वर्ष के बाद आते हैं तो वो बता देते हैं कि आत्मा जो है ये तुम्हारा शरीर है जो दिखाई दे रहा है। तो विरोचन तो सेटिस्फाई होकर चले जाते हैं कि हाँ आत्मा का ज्ञान मिल गया, अब हमें कभी नहीं मरना है। लेकिन इंद्र जाके सोचते हैं कि ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, ये फिर तो कह रहे हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो फिर पहुंचते हैं, फिर वो कहते हैं 25 साल तक खड़े रहो, फिर आना। फिर वो खड़े रहते हैं 25 साल तक, फिर वो आते हैं, फिर वो कुछ और बता देते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो ये आत्मा है, विचार आत्मा है। फिर ऐसे करते करते फिर लास्ट में 101 साल की तपस्या होती है, और उसके बाद फिर आत्मा के लक्षण बताते हैं। तो आत्मा के लक्षण क्या हैं? ये वही हैं जो भागवत गीता में एक श्लोक आता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यानी आत्मा वो है कि जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, नैनम दहति पावका जिसे आग जला नहीं सकती, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो जिसको हवा वायु सुखा नहीं सकती, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो जिसको जल गीला नहीं कर सकता, न शोष्यति मारुता और जिसको हवा सुखा नहीं सकती। यानी आत्मा को किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। तो भागवत गीता में जाकर के वो रिवील्ड हो जाता है एक श्लोक में, जो ज्ञान यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में, तो सबसे बड़ा उपनिषद है। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 6 सीकर्स एंड ऋषि पिपलाद की जो स्टोरी है छांदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद में, ये अपने आप में 6 प्रश्न हैं जो वो करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन। तो उपनिषद जो अपने आप में बड़े फिलोसफिकल ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, मिस्टिकल नॉलेज है। इसको पढ़िए, महावाक्यास वहीं से आते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्म ब्रह्मा। फिर वेदांगा है, और स्मृति, फिर धर्म शास्त्र है। इस पर ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, बस इतना समझिए, लास्ट स्लाइड है कि सबसे एंशिएंट जो है मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथ वो है जिसमें सब्जेक्ट्स इसके लास्ट में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम,
सोशल इकोनॉमिक ट्रेडिशंस, इथिक्स, मोरालिटी, कंडक्ट, विधि विधान, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, सोशल सिस्टम्स। बड़ा कंट्रोवर्शियल एक डिबेट अक्सर रहती है, हर दौर में रहती है, कि मनुस्मृति जो है वो उसको एक जमाना था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा जाता है कि शायद उसको जला दिया था चौराहे पर, और वो बड़े उसके खिलाफ रहा करते थे। और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बने मनुस्मृति का मतलब ये कि बड़े हार्श एंड फास्ट रूल्स हैं और वो बैकवर्डनेस की बात करते हैं। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इंडिया में जब मनुस्मृति लिखी गई 2nd सेंचुरी बीसी की बात है, सबसे पुरानी मनुस्मृति, उसके बाद फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति है, और ये विष्णु, नारद, बृहस्पति, ये सब 5th सेंचुरी एडी में। तो तकरीबन 600-700 साल का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो मनुस्मृति जिस जमाने में लिखी गई थी, उस समय की जो दशाएं थी, उसको जब आप ध्यान में रखेंगे तब वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, आज के समय में नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति में जो कुछ लिखा गया है, बाद के लोगों ने उस पर प्रश्न नहीं उठाए, और हम ही सबसे ज्यादा विद्वान है जो प्रश्न उठा रहे हैं। अरे उसके फौरन बाद इसके जो मेगा तिथि हैं, मनुस्मृति के कमेंटेटर हैं। मनुस्मृति में जिस सती प्रथा का जिक्र किया गया कि पत्नी जो है पति के मरने के बाद सती हो जाए, या फिर ऐसा जीवन गुजारे जो एक तपस्विनी का होता है, तो वो जीवन गुजारना बड़ा कठिन था। तो बाद में फिर ये प्रोविजन रखा गया कि भाई तुम पति के साथ ही मर जाओ जल करके, क्योंकि पति तो चला गया, अब तुम क्या करोगी। और एक बहुत हाईएस्ट लेवल था मॉरलिटी और एथिक्स का, कि पत्नी उसको विधवा जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती थी उस लिमिट को, भले ही उसकी उम्र कितनी कम क्यों ना हो, ना अच्छा खा सकती, ना अच्छा पहन सकती, तो उससे बेहतर है पति के साथ जल के मर जाओ। तो ये प्रोविजन उस जमाने में रहा होगा। उसके बाद जब इस पर कमेंट्री लिखी गई मेघा तिथि ने, तो मेघा तिथि ने सती प्रथा को कह दिया कि ये तो आत्महत्या है, इसको सुसाइड कह दिया। तो उस समय में ही प्रश्न उठाए गए। ऐसा हम ये ना समझे कि आज हम बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए हैं तो हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं और हम ही इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। इंडियन कल्चर की यही ब्यूटी है कि कोई भी एक सिस्टम आता है तो दूसरा सिस्टम उस पर प्रश्न उठाने के लिए स्वतंत्र है। इतनी ऑर्थोडॉक्सी या इतनी ज्यादा रिजिडिटी नहीं है इंडियन कल्चर या ट्रेडिशन में कि हमने जिसको बिल्कुल एक बड़ा बैकवर्ड समझ लिया कि नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता। बुद्धिज्म ने तो पूरे वैदिक सिस्टम को चैलेंज कर दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं होता था उस जमाने में कि उसके खिलाफ खड़े हो गए। भाई प्रश्न उठाने का स्वतंत्र अधिकार है, चारवाक ने विरोध किया। तो ये जो कमेंटेटर्स हैं बात के, याज्ञवल्क्य की स्मृति, विष्णु, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, पाराशर, गौतम, वशिष्ठ, देवल, ये अपने समय के अनुसार उस सोशल इकोनॉमिक ट्रेडिशंस पर रूल्स बनाते हैं और लिखते हैं। तो सिर्फ मनुस्मृति नहीं है, बाकी बहुत सारी स्मृतिज हैं, ये भी IKS का पार्ट है। फिर बाद में बुद्धिस्ट लिटरेचर, त्रिपिटका, विनय पिटक, सुत्पिटक, अभिधम पिटक, एंड सो ऑन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर पेशेंस। हालांकि इस तरह के लेक्चर काफी बोरिंग होते हैं, लेकिन फिर भी आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, बहुत अच्छा था, थैंक यू सर। बहुत अच्छा था। नहीं सर, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, फिर आप सर अच्छा लगता था सर। सर जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी 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 बिल्कुल। कि जैसे आपने बताया कि 101 वर्ष तक उन्होंने तपस्या ही जी जी की, जी जी। तो फिर मतलब एवरेज एज उस समय कितना होता था, उसके बारे में कहीं पे कुछ कमेंट किया गया है कि नहीं? नहीं देखिए, मैंने बताया ना कि उस समय के हिसाब से तो जाहिर सी बात है, जब 101 साल 25-25 करके तपस्या की, तो अब चूंकि वो है कौन तपस्या करना, ये भी देखिए ना कि एक जो है वो इंद्र भगवान है और दूसरे राक्षस के गुरु हैं। तो अब उनकी आयु क्या देखेंगे आप, वो तो हजारों साल में होगी। ब्रह्मा जी के पास भी जो आम मनुष्य नहीं है ना, तो इंद्र हैं, देवताओं के जो राजा हैं, वो जाते हैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने। अब विरोचन जो है वो राक्षसों का लीडर है, वो जाता है। तो इसलिए उनकी आयु जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी। ये इसमें आता है बृहदारण्यक उपनिषद में आता है इसका भी। और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर ठीक है, वाइंड अप करते हैं, फिर कभी समय मिलेगा तो फिर इंटरेक्शन करेंगे। और सर ये बहुत अच्छे ढंग से सर आपने बताया है ना, कि अगर सारांश में कहा जाए, जो श्लोक था कि आने बीच की
कई विद्या दंड नीति पशुपालो वाणिज्यो चा वार्ता जी जी जो है वेद से लेकर और पूरा स्मृत ग्रंथ तक यात्रा तय कराई हम लोगों को, एक रेखा चित्र बना दिया पूरा। हाँ बिल्कुल वही कोशिश थी। जी जी, डिटेल वही को और प्रयास रहा। चाहिए। और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जो समझाए आप, जी बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो ये जी बड़ी जी अच्छी किताब है। ये देखिए, एक मैं बता रहा हूँ, द उपनिषद। जी 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 ये आर दिवाकर की एक बुक है, 1949 में पब्लिश हुई थी, आजादी के जस्ट आफ्टर। तो अगर ये कहीं आपको मिल जाए, आर्काइव्स में मिल जाएगी, आप उस पर देखिएगा। डिजिटल लाइब्रेरी जो आईआईटी खड़गपुर ने स्टार्ट की है, नेशनल या डिजिटल लाइब्रेरी NDL, उस पर आपको जी ये आर दिवाकर की बुक मिल जाएगी, द उपनिषद स्टोरी एंड डायलॉग। तो दिस इज यस अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये हाँ, और बाकी तो उपनिषद ये ऊपर मेरे पास रखे हुए ही है। अगर जी संस्कृत या हिंदी में आप पढ़ना चाहें तो उपनिषद, गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत अच्छे ये नवोपनिषद के नाम से छाप रखा है, जो शंकराचार्य ने लिखा है। लेकिन आजकल उपनिषद बहुत सारे राइटर्स के आ रहे हैं, लेकिन अगर शंकराचार्य का ही ट्रांसलेशन आपको मिलता है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है एज कम्पेयर टू आजकल। क्योंकि अब तो ये समय आ गया ना, जिसके मन में जो बात आती है उसको वो उपनिषद का नाम दे देता है या किसी का, तो इसलिए ओरिजिनल पढ़ना बहुत जरूरी है। जी That's- सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।